Very good morning, students. I hope you all are doing well. So, we have completed our fifth lesson, and now we are going to start with our sixth lesson, which is Introduction to QBasic. Now, what is QBasic? QBasic is an application, or it is a programming language which helps us to develop different programs in a basic language to make it more understandable and easy. Now in this we will be learning few topics, which is components of QBasic window, creating a new program file, writing programs, save the program file, running a program, opening a saved program, exiting QBasic, commonly used terms in QBasic, and commands and statements. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. Now, students, this is one activity which says circle the programming related terms in the given grid and write them in the given space. तो हमें what we have to do is इस बॉक्स के अंदर से हमें अपने प्रोग्रामिंग रिलेटेड वर्ड्स को सर्कल करना है और उनके नेम को यहाँ पे लिखना है. So we need to find them, and first we can see it is a word which is the name of our chapter only, Q basic. So we will write here Q basic. Then here is a word which is related to our programming languages, and it is a variable. So we will write here variable. Then operator. Operators also comes in programming languages. So we will write here operator. Then command, which becomes command. And the last one can be a strin, and the last one can be string, which is string. So now basic stands for QBasic में in QBasic basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code, which is beginners all purpose symbolic instruction code. So it is a programming language which was developed by John Camney in Thomas Kurtz of USA in year 1964. तो बेसिक क्यू बेसिक क्या है, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको किसने डेवलप किया था, जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्ज of USA in the year 1964. The instructions written in basic language cannot be read by computer because they are not written in machine language. देखो जो भी हम बेसिक लैंग्वेज में अगर हम कोड करते हैं या हम कुछ लिखते हैं तो वो मशीन रीडेबल नहीं है. दैट मीन्स हमारा जो कंप्यूटर है वो उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ मशीन लैंग्वेज. To do this, these instructions are translated into machine language using special software called compilers and interrupters. मतलब देखो हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, तो उसको ट्रांसलेट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कंपाइलर्स और इंटरप्टर्स का यूज करते हैं जो हमारे बेसिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. टू फेमस बेसिक इंटरप्टर्स आर क्यू बेसिक एंड GW बेसिक. तो हमारे पास जो क्यू बेसिक है ये हमारे लिए क्या है, इट इज ऑल्सो एन इंटरप्टर जो हमारी मदद करता है कि हम नॉर्मल कोड को एक मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स लर्न अबाउट QBasic in this chapter. To start QBasic, first download QBasic, then link website and extract folder and double click on QBasic logo in the folder. देखो QBasic डाउनलोड करने के लिए हमें इस वेबसाइट पे जाना है, वहां से फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है और डबल क्लिक करके हम QBasic लोगो पे उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं. Now what are the components of QBasic window? This is a QBasic window जिसके components होते हैं एक टाइटल बार, मेन्यू बार, कर्सर, नेम ऑफ करंट प्रोग्राम फाइल, vertical scroll bar, program area, immediate window, horizontal scroll bar,
and status bar. So these are the few components of our QBasic window. Now let's learn them in detail. Title bar. It shows the name of the application that is QBasic. मतलब ये क्या करता है, हमारी एप्लीकेशन के टाइटल को शो करता है, तो विच इज QBasic. ऑन द राइट कॉर्नर इट कंटेन्स, और राइट कॉर्नर में क्या कंटेन करता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स. देन कर्सर, अ ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन. कर्सर क्या है, एक ऐसे ब्लिंकिंग करती हुई लाइन हमारी स्क्रीन के ऊपर, हम उसे कर्सर कहते हैं. देन इमीडिएट विंडो. The lower window is titled immediate window, where the simple statements are typed which get executed immediately. मतलब लोअर विंडो को ही हम टाइटल करते हैं एज एन इमीडिएट विंडो, जहां पे क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट्स टाइप होती हैं जो एग्जीक्यूट होती है इमीडिएटली. एरर्स आर डिस्प्लेड हियर, यहाँ पे एरर्स डिस्प्ले होते हैं. देन प्रोग्राम एरिया. इट इज अ प्लेस वेयर प्रोग्राम एंड कोड इज रिटन. प्रोग्राम एरिया वो एरिया है जहाँ पे प्रोग्राम और हमारा कोड लिखा जाता है. वर्टिकल स्क्रोल बार. दिस इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोग्राम एरिया. वर्टिकल स्क्रोल बार हमारे प्रोग्राम एरिया के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है. इट अलाउज यू टू स्क्रोल अप एंड डाउन थ्रू योर कोड. और वर्टिकल स्क्रोल बार क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हमारा जो कोड है हम उसे अप एंड डाउन मूव करा सकें, स्क्रोल करा सकें. देन हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार. दिस इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम एरिया. जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है ये हमारे प्रोग्राम एरिया के बॉटम में प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द स्टेटस बार. और ये हमारी को क्या मदद करता है कि हम अपना जो कोड है उसको हॉरिजॉन्टली स्क्रोल कर सकें. नाउ मेन्यू बार. It has several menus like file, edit, view, run, debug, options and help. Each menu has various commands in it. Then name of the current page program file. It shows the name of the current open program file at the top of the window. ये क्या करता है, हमारी करंट जो फाइल ओपन है उसके नेम को हमारी टॉप ऑफ द विंडो पे शो करता है. Then status bar. It shows at the bottom of the window and displays list of shortcut keys of few commands to few commands. तो स्टेटस बार क्या करता है, ये हमारे विंडो के बॉटम में होता है और ये हमारे को कुछ शॉर्टकट कीज प्रोवाइड करता है अपने प्रोग्राम के अंदर. देन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम. क्लिक द फाइल मेन्यू. हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे, और प्रेस Alt plus F for file menu, then N to select new program. A new QBasic window opens up. न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे हमें न्यू QBasic विंडो मिल जाएगी. राइटिंग अ प्रोग्राम. राइटिंग कैसे करनी है, राइट अ प्रोग्राम टू शो अ मैसेज ऑन द स्क्रीन. टाइप द फॉलोइंग लाइन. अगर हमने विंडो खोल ली नया हमने QBasic पेज खोल लिया, देन व्हाट वी नीड टू राइट इज, हमें कुछ इस तरीके का मैसेज टाइप करना है, दैट प्रिंट columns QBasic is variant of basic, then columns. Remember to put quotation marks at the beginning and end of the message which is to be displayed. यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हम अगर hello टाइप कर रहे हैं, that if we are typing hello also, what we need to do is हमने पहले लिखना है print, उसके बाद में हमें quotation marks का यूज करना है at the beginning and at the ending of the line, paragraph or the word which we are going to print. तो वो हमारा इस तरह से प्रिंट हो जाएगा. नाउ सेव द प्रोग्राम फाइल. अब हमें अपनी प्रोग्राम फाइल को सेव करना है. टू सेव द प्रोग्राम ओपन फाइल मेन्यू. अपने प्रोग्राम को सेव करने के लिए हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन सेव और सेव एज. एंटर द फाइल नेम एंड क्लिक ओके. फिर हम फाइल का नेम डाल के ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा. नाउ रनिंग अ प्रोग्राम. अपने प्रोग्राम को हमें रन कैसे कराना है, दैट मीन्स हमने जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है. सबसे पहले क्लिक ऑन रन मेन्यू एंड सिलेक्ट स्टार्ट. हमने क्या करना है, रन मेन्यू पे क्लिक करके स्टार्ट को सिलेक्ट करना है. अ ब्लैक स्क्रीन अपीयर्स विद द आउटपुट. हमें क्या मिल जाएगी, ब्लैक स्क्रीन मिल जाएगी विद आवर आउटपुट. तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट स्क्रीन. फिर ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन हो जाती है. नाउ ओपनिंग अ सेव्ड प्रोग्राम. अपने सेव्ड प्रोग्राम को ओपन कैसे करना है, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड सिलेक्ट ओपन ऑप्शन. फाइल मेन्यू पे जाके ओपन ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लेना है. तो ओपन विंडो अपीयर्स. हमारे को क्या मिलेगी, जब हमने फाइल मेन्यू में जाके ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करा
हमें एक ओपन विंडो मिल गई। सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू ओपन फ्रॉम हेयर, और यहाँ से हमें क्या करना है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिसे भी हमें ओपन करना है। द सेव्ड फाइल विल बी ओपन ऑन योर स्क्रीन, और जो सेव्ड फाइल है वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। नाउ एग्जिटिंग क्यूबेसिक, क्यूबेसिक से एग्जिट लेनी है हमें, तो व्हाट वी विल डू, click on file menu then select exit, the QBasic window will be closed। फाइल मेन्यू पे गए, एग्जिट को सिलेक्ट किया, हमारी क्यूबेसिक विंडो क्लोज हो जाएगी। कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन क्यूबेसिक, क्यूबेसिक के अंदर कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड टर्म्स हैं? देयर आर सो मेनी टर्म्स विच आर इंक्लूडेड व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम, जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं। हियर कॉमनली यूज्ड टर्म्स आर गिवन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट इज रिजर्व्ड वर्ड्स, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, रिजर्व्ड वर्ड्स। देयर आर सम वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग विद रेफरेंस टू क्यूबेसिक एंड आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और हमारे पास टर्म्स हैं जो क्यूबेसिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को फुलफिल करती है। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन वन स्पेसिफाइड इन क्यूबेसिक, क्यूबेसिक के अंदर जिसका जो स्पेसिफाइड काम है वो उससे अलग कुछ भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल LET, इनपुट, प्रिंट एटसेट्रा, तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ रिजर्व वर्ड्स हो गए जिनका सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक काम होता है इन क्यूबेसिक। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट आर वैल्यू डेटा दैट नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखो कांस्टेंट्स हमारे पास वो वैल्यूज या फिर वो डेटा होता है जो एग्जीक्यूशन पे चेंज नहीं होता। हमारे प्रोग्राम के अंदर इट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स इट रिमेन्स सेम। There are of two types, numeric and alphanumeric, और जो constants होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, numeric and alphanumeric। Now numeric constants refers to numbers generated by a combination of digits from 0 to 9। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये वो नंबर्स हैं जो जनरेट हुए हैं 0 to 9 तक के नंबर्स के कॉम्बिनेशन से, दैट मीन्स 3, 47, -76, 4.8 etc। अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो हम अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को स्ट्रिंग कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। दे आर कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल पूजा, P7, जागृति विहार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया, हमने 0 to 9 के नंबर्स का भी, और कुछ स्पेशल हमने यहाँ पे करेक्टर यूज किया विच इज कॉमा। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फान्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। नाउ वेरिएबल्स, अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स अ वैल्यू। मतलब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक नेम है जो हम देते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन को जिसके अंदर हमारी वैल्यू जाती है। दिस वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, और ये जो वैल्यू होती है ये फिक्स्ड नहीं होती। Variables are also of two types, numeric variables and alphanumeric variables। What is numeric variable? Numeric variables store numeric constant or numeric expression that return numeric value। न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर न्यूमेरिक कांस्टेंट या फिर न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उन्हीं की वैल्यू रिटर्न होती है इन अ न्यूमेरिक फॉर्म ओनली। देन अल्फा न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल का हम यूज कब करते हैं, जब भी हमें स्टोर करनी होती है किसी भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल मीन्स शुड ऑलवेज एंड विद दिस साइन, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है वो हमेशा इस साइन से एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेम दिस इज इक्वल्स टू दिव्यांशी, आइटम दिस इज इक्वल्स टू शार्प। तो हमने क्या करा, जो भी हमारा वो था स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, उसके आगे हमने इस साइन को डिनोट कर दिया विच इज द साइन ऑफ अ स्ट्रिंग। नाउ रूल्स ऑफ फॉर नेमिंग न्यूमेरिक वेरिएबल्स। हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स को नेम करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं? द नेम ऑफ अ न्यूमेरिक वेरिएबल मस्ट बिगिन विद इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय मोर लेटर्स और डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। देखो जो भी हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल है वो बिगिन होना चाहिए किसी भी एक इंग्लिश अल्फाबेट से, और भी वर्ड उसके अंदर हो सकते हैं, डिजिट्स होनी चाहिए फ्रॉम 0 to 9। फॉर एग्जाम्पल एज इज इक्वल्स टू 30। हियर एज इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल विच स्टोर्स द कांस्टेंट वैल्यू 30। यहाँ पे जो एज है ये हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल है जो क्या स्टोर करता है,
कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है विच इज 30. नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर आर अलाउड इन द नेम ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल. न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता. मतलब अंडरस्कोर इज, जैसे मैंने लिखा सलोनी अंडरस्कोर 51, तो अंडरस्कोर होता है जो नीचे की तरफ हमारे पास एक मार्क होता है. तो हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर अंडरस्कोर के अलावा कोई और कैरेक्टर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सेल अंडरस्कोर प्राइस, कॉस्ट अंडरस्कोर प्राइस. तो ऐसे ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म सेवरल ऑपरेशंस ऑन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं कि हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके और अपने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द ऑपरेशन 4+5. तो यहाँ पे 4 और 5 तो हैं कॉन्स्टेंट्स और उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड्स बोलेंगे. जबकि जो प्लस साइन है हमारा वो क्या है, ऑपरेटर, कॉजिंग द 4 and 5 टू बी एडेड. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6 - 5, तो here 6 and 5 आर माई ऑपरेंड्स. मतलब जो भी हमारे नंबर्स कैलकुलेट करे जा रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, ऑपरेंड्स होंगे. बट द मार्क, द प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज आर अवर ऑपरेटर्स. ये हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं. बिकॉज ये उन दोनों नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं, इधर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन क्यूबेसिक. क्यूबेसिक के अंदर 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. First is arithmetic operator. Arithmetic operators are used with numeric constants and variables. Arithmetic operators को हम numeric constants या फिर variables के साथ में यूज करते हैं. वो होते हैं जैसे प्लस यानी कि add, minus, subtract. This sign is used for multiply. This slash is for divide and this is for exponential. Now logical operator. These are used to combine two or more relation expression which can be evaluated to return a single value in the form of true or false. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये हमारे को ये कंबाइन करते हैं दो रिलेशन एक्सप्रेशंस को और ये हमें रिटर्न करते हैं वैल्यू इन अ सिंगल फॉर्म जैसे कि ट्रू या फॉल्स. दीज आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग. और लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं. द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट. एंड और नॉट हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स. नाउ रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज. रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए. दीज आर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. तो ये हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स. नाउ कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स. Statements are the commands that are typed as program statements. देखो statements क्या है, statements वो commands हैं जो हम type करते हैं as program statements. Some of these are as follows. जैसे print. The print statement is used to display the output of the program on the screen. हम जो भी लिखते हैं हम उसके आगे print क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमें मदद करता है कि हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट ला सके. तो प्रिंट स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस ऑन द स्क्रीन. तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारे को वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशंस को अपनी स्क्रीन पे लाने में हेल्प करता है. सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स मतलब होता है फॉर्मेट. तो प्रिंट को यूज करने का जो सिंटेक्स है वो क्या है कि हमारे को जो भी अपना लाइन लिखना है, जो भी हमें कॉमेंट लिखना है या जो भी चीज हमें लिखनी है, प्रिंट करानी है अपनी स्क्रीन पे, उससे आगे हम प्रिंट लगा देते हैं और उस जो भी हमारा डेटा है उसके बिगनिंग और एंड में हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं. To print a string, always enclose it with double quotation marks, but to print a number, simply write the number after print statement without quotation mark. लेकिन अगर हमें कभी कोई नंबर प्रिंट कराना है तो उसमें हमें कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली प्रिंट के आगे अपना नंबर लिख सकते हैं. तो प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू वेज. अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं. वन विद द कॉमा और अनदर विद द सेमीकोलन. पहला कि हम कॉमा यूज करें, दूसरा कि हम सेमीकोलन यूज करें. इफ यू वांट टू प्रिंट द 4 वर्ड्स इन अ लाइन, यूज अ सेमीकोलन विद प्रिंट. मतलब अगर हमें एक ही लाइन के अंदर 4 वर्ड्स को अपने प्रिंट कराना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम सेमीकोलन वहां पे यूज करेंगे. Using semicolon with print to insert a single blank space in between the words, use semicolon with the print command. अगर हमें अपनी लाइन है जिसमें 4 वर्ड्स हैं
और उनके बीच में अगर हमें थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट के साथ में हम सेमी कॉलन का बीच में यूज करेंगे। यूजिंग कॉमा विद प्रिंट, line of the cubic screen separated into five zones। हमारे पास जो लाइन है क्यूबेसिक स्क्रीन के अंदर वो 5 जोन्स में सेपरेटेड है, ईच विद 14 स्पेसेस, और हर एक के बीच में कितना स्पेस है, 14 स्पेसेस का अंतर है। वी कैन यूज कॉमास टू पुट आवर टेक्स्ट इन डिफरेंट जोन्स ऑफ द लाइन, और हम कॉमास की मदद से अपने टेक्स्ट को डिफरेंट जोन्स ऑफ लाइंस में यूज कर सकते हैं। प्रिंट कविता, सूरज एंड गुप्ता, यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉमा का इस्तेमाल करा है, तो हमारा आउटपुट बीच में ये स्पेस प्रोवाइड कराएगा। नाउ लीविंग अ ब्लैंक लाइन, टू लीव अ ब्लैंक लाइन इन बिटवीन लाइन्स टू प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी गिवन विदाउट एनी डेटा और वेरिएबल। मतलब यहाँ पे अगर हमें कोई भी वर्ड के बाद में एक हमें लाइन गैप छोड़ना है तो उसके लिए द प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी गिवन विदाउट एनी डेटा, तो हमारे को प्रिंट स्टेटमेंट बिना किसी डेटा के वहां पे छोड़ देनी है या फिर वेरिएबल के वहां पे छोड़ देनी है, तो वो क्या करेगा, वहां पे हमें वो एक लाइन गैप दे देगा। कैलकुलेशंस विद प्रिंट, यू कैन यूज द प्रिंट कमांड टू डू वेरियस कैलकुलेशंस। प्रिंट कमांड को यूज करके हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर दिस यू हैव टू यूज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और इसके लिए हमें क्या यूज करना है, बस हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट 20 प्लस 9 इक्वल्स टू दिस, देन सेमीकोलन 20 प्लस 9। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज करा, पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में करा, तो दैट मीन्स प्रिंट कमांड भी हमें क्या मदद करता है, कैलकुलेशंस में मदद करता है बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ एंड स्टेटमेंट, एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन एन एंड स्टेटमेंट, हर प्रोग्राम में एक एंड स्टेटमेंट होनी चाहिए विच इज रिटन एट द लास्ट स्टेटमेंट इन एवरी प्रोग्राम। जो हर प्रोग्राम की क्या होती है, लास्ट स्टेटमेंट होती है। द एंड स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट और एंड द प्रोग्राम, और जो एंड स्टेटमेंट होती है उसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को खत्म करने के लिए या फिर उसको टर्मिनेट करने के लिए, जिसका सिंटेक्स होता है लाइन नो एंड। मतलब कि हमारे पास जो लाइन नंबर है उस डॉट एंड, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 30 एंड। गिवन बिलो इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट द परसेंटेज स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है टू प्रिंट द परसेंटेज स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट। So now our next topic is REM command. REM command is used to insert remarks in your program. REM command का हम यूज करते हैं कि हमें जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर रिमार्क्स को ऐड करना होता है या इंसर्ट करना होता है। इट इज लाइक अ प्रोग्राम हेडिंग। ये क्या है, ये एक तरह से हमारे प्रोग्राम की हेडिंग है। दिस लाइन इज नॉट रेडी बाय द read by the interpreter and is not considered as an instruction। ये वाली जो लाइन होती है ये हमारा जो इंटरप्टर है वो रीड नहीं करता, एज वेल एज हम इसको एज एन इंस्ट्रक्शन भी कंसिडर नहीं करते हैं। दिस इज अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर रिपोर्ट कार्ड। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्प्ले आवर रिपोर्ट कार्ड। So first what we have done is CLS, then input, enter your name with quotation marks, then enter your marks with subjects, and then we have written here M1, M2, M3, then input, enter maximum marks for 5 subjects, then what we will do in total M1 plus M2 plus M3 plus M4 and plus M5. Then we have put it here formula here. REM command we can see here we have written REM formula of percentage marks। तो ये हमारे लिए एज ए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये हमारे इंटरप्रेटर रीड भी नहीं करेगा, बट इट जस्ट मेक्स आवर प्रोग्राम इफेक्टिव। ये एक तरह से क्या है, रिवॉर्ड है। नाउ प्री इक्वल्स टू परसेंटेज के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, टोटल अपॉन मैक्सिमम मार्क्स विच इज MM into 100, then print name, print total marks awarded, print percentage, and this is what the final output is। सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है what it will ask, enter your name, we have entered it, enter marks in 5 subjects, we have entered it, enter maximum marks for 5 subjects which will be 500, then name Rahul, total marks awarded itna, percentage will be applied। So this is how we use REM command। REM command is just a reward for our program, it's not an instruction and also does not read by the interpreter।
Now CLS command. CLS command is used to clear the output screen. CLS command का हम use करते हैं अपनी output screen को clear करने के लिए. When we run a program containing CLS command, it clears the output screen automatically. मतलब जो भी अगर हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं जिसके अंदर हमने CLS कमांड का यूज करा है तो वो हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्या कर देगी, क्लियर कर देगी. Now REM program to enter the radius of a circle and print the area. REM program to print the area of a rectangle. Print my name is this CLS print use CLS command to clear screen. तो हमारे पास क्या आया, जब हमने CLS यूज कर दिया तो हमारी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई एंड इट जस्ट प्रिंटेड दैट लाइन. नाउ बिल्डिंग अ बेसिक कैलकुलेटर. कैलकुलेटर बिल्ड करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें वी हैव यूज्ड CLS एंड REM. Then input first number, second number. Then what we have to do is we have to write a sum, multiply, subtract और divide. हमने चारों यहाँ पे formulas लगा दिए अपने mathematics के. Num1 is number 1. Num2 is number 2. Then we have added plus, multiply, minus and divide. We use this for divide and we use this star for multiply, and plus for addition and minus for subtraction. So this is how we created our program, and this is the final output where it asks us first number we have written 12, second number 5, sum of two number are 17 and the product of two number are 6, because these what we have asked them. Now another example, find area and perimeter of a rectangle. Here also we have used CLS and REM command. We have first input enter the length of rectangle. सबसे पहले हमें length चाहिए. Then दूसरा input हमने लिया enter the breadth of the rectangle which is b. Then हमने यहाँ पे formula लगाया. area का क्या होता है L into b. Perimeter का क्या होता है 2 into L plus b. Then what we have to do is we have to print the area of a rectangle is a. Print the perimeter of a rectangle is T and then end. So our output will be enter the length of a rectangle, we have entered the length, enter the breadth of the rectangle, we have entered the breadth, then the area of a rectangle is this and the perimeter of the rectangle is this. So I hope students the chapter is clear to you. This was a complete chapter. Do revise the chapter and practice the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.